Hello dear students, welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Dear friends, we are discussing the subject Power Plant Engineering. The subject code is KME 076. Today we start last unit, that is 5th unit, right. So, in the series of Power Plant Engineering, this is our 35th lecture. Today we will discuss electrical systems of power plants. So, the contents which we will discuss today are generator, earthing, transformer, circuit breaker, protective equipment and switch gear. So, we will discuss these content. First of all, the first content is generator. Dear friends, you know very well about the generator. एक जनरेटर का अगर आप देखिए यहाँ पर एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, फिगर लगाया हुआ है. इस फिगर को आप देख सकते हैं. ऐसा जनरेटर आपने बहुत सारी जगह देखा होगा. सो छोटे छोटे कमर्शियल एरियाज़ में, छोटे छोटे फंक्शंस में, हाउस होल्ड फंक्शंस में इस तरह के जनरेटर देखने को मिलते हैं. सो जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सी बेसिकली क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना जनरेटर, in this generator there are two part. This one is the first part, this one is the first part. This first part is engine. This is basically an IC engine which generally run on the diesel. So, and here there is a shaft, output shaft of this engine. So, this engine give or you can say this engine convert the energy available in diesel or petrol, that is chemical energy, into mechanical energy. So, this shaft will rotate with this conversion with this engine. Now, there is a part which is known as alternator which generate the electricity. Now, in this part we have to supply input as a rotary motion. So, rotary motion किसी भी तरीके से अगर हम provide कर सकते हैं, whether it is due to the steam engine, whether it is due to the IC engine or by any means. So, it will convert that rotary motion into electrical energy. So, the shaft is common, this shaft is provided to this alternator, it will rotate, and when it will rotate, it will convert rotary motion, that is mechanical energy, into electrical energy. So, you can see here the mechanical energy is input to the generator and it will give output as electrical energy. Now, it is a single phase generator or 3-phase generator, it depends on our requirement. If we are talking about working principle of generator, in generator I told you mechanical energy convert into the electrical energy, right. The working principle of all the generators are same. आप कोई भी generator लें, whether that generator is working on steam engine, attached to steam engine or a hydraulic turbine or gas turbine or petrol diesel engine. So, working principle of all the generators are same, but they may vary in construction. In general, a generator has two main part. कौन कौन से दो मेन पार्ट्स होते हैं जनरेटर के, अगर आप देखें, one is coil, other is magnet. So, there are two main parts of the generator and all the generator works on Faraday's law of electromagnetic induction, right. What is Faraday's law of electromagnetic induction? अगर हम बात करें Faraday's law of electromagnetic induction क्या है? Dear friends, this is an important point. So, you can say when a coil is rotated in a magnetic field, ध्यान रखिए, दोबारा से देख लीजिए, when a coil is rotated in a magnetic field by some mechanical means, when a coil is rotated in magnetic field by some mechanical means, magnetic flux is changed through the coil and consequently EMF is introduced in the coil. So, this is the working principle of generator. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जनरेटर की. जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? सी ऑल द जनरेटर्स कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, AC करंट और अल्टरनेटिंग करंट एंड DC करंट और डायरेक्ट करंट. सो जनरेटर आर ऑल्सो ऑफ दीज टू टाइप, AC अल्टरनेटिंग करंट और AC, डायरेक्ट करंट और DC. So, alternating current generator can be further of two types, synchronous generator and induction generator, while direct current can be of two type, DC generator can be of two type, self excited DC generator and separately excited generators, right. Now, generator excitation systems. So, the formula for generated voltage is equal to E raised to power 4.44
F5MNK, right? It means generated voltage depend on speed. Speed is represented by F, flux density that is phi m, it is mean flux density, number of turn that is N, and winding factor that is K. So, E is generated EMF, E or generated voltage E, it depend on 4.44 is the constant, F is the speed, phi m is the flux density, N is the number of turn, K is the winding factor. एक्साइटेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एक्साइटेशन. ध्यान रखिए व्हाट इज एक्साइटेशन, राइट. इट प्रोवाइडेड पावर टू द फील्ड वाइंडिंग, दस प्रोड्यूस फील्ड फॉर द रोटर. देयर आर टू टाइप ऑफ एक्साइटर्स, वन इज ब्रश टाइप और स्टैटिक एक्साइटेशन, अदर इज ब्रशलेस एक्साइटेशन. सो कुछ जनरेटर्स में ब्रश यूज़ करते हैं, कुछ जनरेटर्स में ब्रश नहीं होते, राइट. अब ब्रश टाइप और स्टैटिक एक्साइटेशन की अगर हम बात करते हैं, रोटर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग माउंटेड ऑन रोटर. एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द करंट ट्रांसफर बाय कॉन्टैक्ट थ्रू कार्बन ब्रशेज, स्लिप रिंग एंड फील्ड लीड. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रशलेस एक्साइटेशन? इट एलिमिनेट स्लिप रिंग, ब्रश गियर एंड फील्ड ब्रेकर. देखिए ये ब्रश टाइप का था, वेन एवर वी आर यूजिंग ब्रश टाइप, सो हमें क्या है, हमें ये स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट है विच आर माउंटेड ऑन द रोटर, कार्बन ब्रश की रिक्वायरमेंट है, फील्ड लीड की रिक्वायरमेंट है. सो इसीलिए वी आर ट्राइंग टू प्रेफर ब्रशलेस एक्साइटेशन. अगर ब्रशलेस एक्साइटेशन हम लोग प्रेफर करते हैं, सो ब्रशलेस एक्साइटेशन यू कैन सी देयर आर फ्यू एडवांटेजेस दैट इट एलिमिनेट स्लिप रिंग, ब्रश गियर एंड फील्ड ब्रेकर. सो जो ब्रश एक्साइटेशन में आपको रिक्वायरमेंट थी स्लिप रिंग की, ब्रश गियर की, फील्ड ब्रेकर की, सो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है. ऑल्सो इट एलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ करंट वाया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट. सो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर एलिमिनेट होती है. एक और यहाँ पर एलिमिनेशन है, एलिमिनेट द हैजार्ड ऑफ चेंजिंग ब्रश ऑन लोड. और साथ में कहता है ब्रश घिस जाते हैं तो बार बार टाइम टू टाइम ब्रश को चेंज करना पड़ता है. सो व्हेन देयर इज ए ब्रशलेस एक्साइटेशन, ब्रश ही नहीं है तो चेंज कहाँ से करोगे, राइट. और एक और चीज़, ब्रश लॉसेज आर एलिमिनेटेड. सो दीज आर द एडवांटेजेस व्हेन वी आर यूजिंग ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अर्थिंग पर. अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है. देखिए इन दिस डायग्राम व्हाट आई वांट टू शो कि अर्थ में एक गड्ढा खोद दिया है, पिट खोद दिया है, और उस पिट में एक कॉपर का पाइप लगा दिया है और उस पाइप से एक वायर कनेक्ट किया हुआ है. आप देख सकते हैं इसको, राइट. अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है, इसको हम कहते हैं अर्थिंग करना. अब अर्थिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग? सो कमिंग स्लाइड्स में आपके साथ ही हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट अर्थिंग इज कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग सिस्टम. मीन्स और यू कैन से व्हाट इज़ द नीड ऑफ अर्थिंग सिस्टम. So all the people living or working in residential, commercial and industrial installation, particularly the operators of machine and personals who are in close operation of contact with the electrical system and machineries, should essentially be protected against possible electrification, right. To achieve this protection, earthing system of an installation is defined, designed and installed according to standard requirement. डियर फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा जैसे बारिश के दिनों में हम कहते हैं कि करंट आ गया, घर में वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, कभी कभी माइक्रोवेव में या किसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कभी कभी करंट आ जाता है, राइट. वी फील सम करंट. सो कभी कभी क्या होता है, वो करंट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इट कैन बी डेंजरस. सो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए हमें उस सिस्टम को अर्थिंग कर देना चाहिए. अगर आपने पहले सुना हो, पहले जब कूलर हुआ करते थे मेटेलिक बॉडी के, सो मेटेलिक बॉडी के जो कूलर थे उसमें करंट बहुत ज़्यादा आ जाता था और कभी कभी उसमें डेथ भी हो जाती थी. तो इन सब को अवॉइड करने के लिए अर्थिंग इज़ ए सॉल्यूशन. अर्थिंग आप कर सकते हैं घर में, और उस डिवाइस को जहाँ पर आपको लगता है करंट आ सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सो उस डिवाइस में आप अर्थिंग कर सकते हैं, राइट. अर्थिंग करने से क्या होगा कि वेन एवर देयर इज़ ए करंट इन द बॉडी इटसेल्फ, सो वो जो करंट है बॉडी का वो अर्थ में चला जाएगा, और जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है उस पर्सन को वो करंट फील नहीं होगा. सो आवर पर्सन इज सेफ. ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट और दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्थिंग सिस्टम. अब अगर हम अर्थिंग की और आगे बात करें,
So earthing of the system is connecting any one point of electrical system to the ground, right. अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर, अब क्या रिक्वायरमेंट है अर्थिंग की, जैसे मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा, अगर आप देखेंगे कि डिस्चार्जिंग द एक्यूमुलेटेड चार्जेस टू द ग्राउंड टू प्रिवेंट हैजार्ड्स टू मैन एंड मशीन। सो किसी भी मशीन में अगर करंट आ जाता है तो उस मशीन को और उस मशीन को ऑपरेट करने वाले पर्सन को, चाहे वो हमारे घर में डोमेस्टिक में है या हमारे इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पर जो भी पर्सन उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उस मैन की और मशीन की दोनों की सेफ्टी के लिए उस चार्ज को, उस करंट को ग्राउंड कर दिया जाता है, राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज स्टेबलाइजिंग सिस्टम वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस इज अ सेकेंड रिक्वायरमेंट। अगर थर्ड रिक्वायरमेंट की हम बात करें, फास्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिव गियर इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट, राइट। और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है अर्थिंग सिस्टम की, एफिशिएंट रिटर्न ऑफ फॉल्ट और लीकेज करंट टू इट्स सोर्स without causing any disturbance to the running system. So friends, these are the requirements for the earthing, और earthing is necessary for these points. इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। और अगर ट्रांसफार्मर के लिए हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है विलियम स्टेनले जूनियर ने, दैट ट्रांसफार्मर्स आर द हार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। मीन्स जिस तरीके से हमारी बॉडी में हार्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल स्पेशली एसी सिस्टम में हार्ट जो है वो ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के उसी तरीके से रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा रोड साइड पर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं, दे सप्लाई द वोल्टेज, दे सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर्स आर द स्टैटिक डिवाइस, they can transfer electrical energy from one part of electrical or electronic circuit to the other part of circuit without changing the frequency. This is the important part here कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है मैं आगे वैसे डिस्कस करूंगा पर अभी नेक्स्ट लाइन्स में, बट फिर भी आपको बता दूं ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन करता है, राइट। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, जैसा अभी हमने पहले जनरेटर के केस में डिस्कस किया है, राइट। नाउ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज एट पावर जनरेटिंग स्टेशंस, इसको हम कहते हैं स्टेप अप वोल्टेज या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड पर्पज और फॉर एंड यूजर्स, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। सो दो तरह के ट्रांसफार्मर यहाँ पर हमने आपको बताए हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो जनरली पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सप्लाई एट हाई वोल्टेज। अलग फ़ायदे हैं हाई वोल्टेज पर ट्रांसफ़र करने के, उससे लॉसेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। और वायर का जो डायमीटर है, केबल का डायमीटर, वो भी काफ़ी कम रहता है। By increasing the voltage, the losses of electricity in the transmission purpose is minimized, right. Now अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की ट्रांसफार्मर की, सो आपको मैंने बताया ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। सो दिस वी हैव ऑलरेडी मेंशन हियर ऑल्सो। अब ये है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन द करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ड्यू टू दिस द EMF इज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान रखिए, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं है, प्राइमरी वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है, ठीक है। सो व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ड्यू टू विच EMF is induced in the secondary winding as it comes in the area having magnetic field lines due to primary winding. So what will be the secondary winding voltage? अगर हम secondary winding voltage की बात करें तो एक फॉर्मूला हमने दिया जिससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट secondary winding voltage is equal to NS into d phi by dt, right. So where Vs is the secondary winding voltage and NS is the secondary winding turn. सो कितना यहाँ पर जनरेट होगा वोल्टेज, ये यहाँ से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह लीजिए
इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर अगर हम बात करें, सो द फर्स्ट वन इज द लेमिनेटेड कोर. कोर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. कोर आर डिजाइन नॉट टू हैव करंट इन इट, but still there is a leakage of current or the eddy current present in it. So to minimize these currents, the cores are laminated. So cores को laminate किया जाता है so that आपस में contact में ना रहें और current इनमें से लीक ना करे, but still कुछ current यहाँ पर लीक करता है. इसके बाद बात करते हैं वाइंडिंग की. अभी आपको मैंने बताया दे रहा 2 वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग as well as secondary winding. 2 windings are there. So these windings are generally made up of copper or aluminum coated with very thin layer of insulation. Now there is a tank. The main function of conservator tank of transformer is to provide adequate space for expansion of oil inside the transformer, and it is usually cylindrical or cubical, right. ऑयल की ज़रूरत क्यों होती है? ऑयल की ज़रूरत क्यों होती है? whenever we are giving current to the primary coil, it generate EMF in the secondary coil and there some part is waste in the heat. So उस heat को carry करने के लिए, उस heat को वहाँ से remove करने के लिए we are using oil. So next point is the isolation. It is provided by using synthetic oil between core and tank, right. इससे क्या होगा? टैंक में करंट नहीं आता. और ब्रीदर की अगर हम बात करें, when the temperature change occurs in the transformer insulating oil, so oil expand or contract, and there is an exchange of air also occur when transformer is fully loaded. So when transformer get cooled, the oil level goes down and air get absorbed within. So this is known as breather. अगर आप ट्रांसफार्मर को ध्यान से देखते हैं तो हर ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर होगा, इस तरीके से लगा हुआ होगा. नीचे से ये ओपन होता है तो यहाँ से एक फ़िल्टर इसके अंदर लगा हुआ होता है, तो एयर यहाँ से जा सकती है इन और बाहर आ सकती है. एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन देयर इज़ ए हीट जनरेशन और ऑयल गर्म हो जाता है टैंक के अंदर, सो गर्म होने पर क्या होगा? एक्सपेंड होगा ऑयल एक्सपेंड होगा तो जो अंदर एयर है वो बाहर आ जाएगी. और अगर मान लीजिए EMF जनरेशन कम हो रहा है और ऑयल जो है, नाउ ऑयल इज़ गेटिंग कूल्ड, ऑयल का टेम्परेचर कम हो रहा है तो इट विल श्रिंक, एंड व्हेन इट विल श्रिंक इट, तो कुछ क्या होगा कि अंदर कैविटी फॉर्म होगी तो एयर अंदर जाएगी टैंक के. सो इस ब्रीदर के थ्रू ही एयर अंदर जाती है, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर की. फ्रेंड्स, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो देखिए आपने बहुत देखा होगा कि रोड साइड पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ट्रांसफार्मर रोड साइड पर काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं. सो वट यू कैन सी देयर पर्पजेज आर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू वायर्स. आप देखेंगे कि जगह जगह पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं एंड दे आर नॉट सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू एनी रेजिडेंशियल एरिया और एनी कमर्शियल एरिया. दे आर जस्ट सप्लाइंग द एनर्जी फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल. दे आर जस्ट सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो आप कह सकते हैं ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं. ट्रांसफार्मर विद सेवरल सेकेंडरीज आर यूज्ड इन टेलीविजन्स एंड रेडियोज रिसीवर्स वेयर सेवरल डिफरेंट वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड. सो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन सभी में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ टेलीविज़न, वेदर इट इज़ रेडियो, ट्रांजिस्टर्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज. सो वी आर यूजिंग ट्रांसफार्मर्स देयर. ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन डे टू डे लाइफ. ट्रांसफार्मर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर. और अभी जो हमारे डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं बिकॉज जो वोल्टेज अवेलेबल है दैट इज़ हाई वोल्टेज, और ट्रांसफार्मर्स हाई वोल्टेज को कम कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है 220 वोल्टेज में, और वो 220 वोल्ट हमारे डोमेस्टिक में रेजिडेंसीज में सप्लाई की जाती है. ओके. इसके बाद डियर फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द सर्किट ब्रेकर्स. अगर आप देखेंगे ये सर्किट ब्रेकर का डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं. इसका नाम लिखा है हमने सर्किट ब्रेकर. आप नाम से समझ जाइए सर्किट ब्रेकर मीन्स विच आर डिजाइंड टू ब्रेक द सर्किट. ठीक है. सर्किट ब्रेकर का नाम से क्या पता पड़ रहा है? अ डिवाइस विच इज डिजाइंड टू ब्रेक द सर्किट, राइट. अ सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट. फ्रेंड्स, आजकल हम लोग क्या करते हैं, घर में जब इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाते हैं तो MCBs हम कहते हैं कि MCBs हमने इंस्टॉल करी. अगर आप देखें, देखिए एक ये हमने एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पर दिखाया हुआ है. सो यू कैन सी इट इज़ लाइक MCB. सो होता क्या है, जैसे ही वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ जाती है
या घर में शॉर्ट सर्किट होता है कहीं भी, ये एमसीबी डाउन हो जाती है, और एमसीबी डाउन होने से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, और घर के जो सारे बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो सारे सेफ हो जाते हैं, और घर में फायर का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है, राइट। सो इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय इंटरप्टिंग द करंट फ्लोइंग इन द लाइन, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। दोनों तरह से काम करता है, मीन्स ना तो ये व्हेन इट इज़ यूज्ड, जब इसने सर्किट को ब्रेक कर दिया, सो ना तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ सकती, ना ही अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बाहर जा सकती, राइट। जैसे घर में मान लीजिए आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है और इन्वर्टर के एमसीबी को ऑफ कर दिया आपने, तो इन्वर्टर से लाइट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ए ब्रेकर इंटरप्ट द करंट बाय मैकेनिकली मूविंग इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट अपार्ट इनसाइड एन इंटरप्टर, कॉजिंग एन आर्क to occur that is immediately suppressed by the high dielectric medium inside the interrupter। अगर इसके एक डायग्राम की बात करें, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें, तो देखिए एक डायग्राम यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर हमने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिखाए हुए हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम। सो दिस डायग्राम इज ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, एंड a simple circuit breaker has the following part। you can see there is an electromagnetic, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और यू कैन से बाईमेटेलिक स्ट्रिप इज देयर। अब बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ टू मेटल्स, राइट, टू डिफरेंट मेटल्स से ये बनी हुई है। इसके बाद एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, अगर आप देखें देयर इज ए मूविंग कॉन्टैक्ट एंड ऑल्सो देयर इज एन स्टेशनरी कॉन्टैक्ट। देयर इज ए स्विच ऑल्सो, एक स्विच है जिसको आप मैनुअली भी अप या डाउन कर सकते हैं। देयर इज ए स्विच, राइट। सो मैनुअली अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सर्किट में कहीं प्रॉब्लम आ गई, स्विच डाउन हो गया है, नीचे आ गया है ये स्विच, सो व्हेन यू चेक द सर्किट एंड यू करेक्ट द सर्किट, यू रिपेयर द सर्किट, तो इसको आप मैनुअली अप कर सकते हैं, सो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फिर से शुरू हो जाए, चालू हो जाए। देयर आर टू टर्मिनल्स, अपर एंड लोअर टर्मिनल्स, यू कैन सी वन इज दिस टर्मिनल, अदर इज दिस टर्मिनल, राइट, एंड वन इज देयर इज ए कैच, सो देयर इज ए कैच। सो अभी देखिए जो दो टर्मिनल है, ये क्या है, these two terminals are used for input and output। in most of the cases input is from here, input from lower terminal and output from the upper terminal, यहाँ से आउटपुट हमें मिलती है यहाँ से, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सर्किट ब्रेकर के। इसका वर्किंग की बात करते हैं हम सर्किट ब्रेकर की। बेसिकली सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल स्विच कनेक्टेड टू ईदर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ए बाईमेटेलिक स्ट्रिप। Now when the current reach to onward to the unsafe level, मैंने बताया शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट में कितना करंट होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, राइट। सो व्हेन द करंट रीच ऑनवर्ड टू द अनसेफ लेवल, देन द इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुल डाउन अ मेटल लीवर कनेक्टेड टू द स्विच लिंकेज। ड्यू टू दिस ऑपरेशन द एंटायर लिंकेज शिफ्ट, tilting the moving contact away from the stationary contact to break the circuit and thus electricity shut off। अब अगर हम बात करें कि भाई हम फ्यूज़ भी तो यही काम करता था। फ्यूज़ घर में पहले फ्यूज़ यूज़ करते थे, जिसमें एल्यूमिनियम का एक वायर यूज़ करते थे। तो फ्यूज़ का काम क्या था कि अगर कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता था। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर? यू कैन से दीज आर द फंक्शन ऑफ द फ्यूज़। Fuse perform both detection and interruption function, right। अगर हम इसकी बात करें सर्किट ब्रेकर की, it perform interruption function only। the detection of fault is made by the relay system। so एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, fuse is completely automatic and small in size, right। इसमें क्या है, it can require relay for automatic action and large in size। its operating time is very small, it is about 0.002 second। its operating time is 0.1 to 0.2 second। it require replacement after every operation, and इसमें क्या है कि no need for replacement। अब देखिए बाकी कोई भी एडवांटेज नहीं है फ्यूज से। इसमें अगर आप देखें फ्यूज़ में ये इतने सारे एडवांटेज हैं, राइट, लेकिन ये एडवांटेज हैं फ्यूज़ के, बट देयर इज़ वन डिसएडवांटेज। अगर घर में कोई भी नहीं है, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, घर में फीमेल है, एंड दे आर नॉट एबल टू चेंज द वायर ऑफ द फ्यूज़, तो क्या होगा, वो अंधेरे में ही रहती थी। और इस केस में केवल यही एडवांटेज है कि नो नीड टू रिप्लेसमेंट, जस्ट आप स्विच ऑन कर दीजिए, या एक हर अपने रूम के अलग अलग एमसीबीज यूज़ की हुई हैं, सो उस रूम की लाइट चली जाएगी, बाकी सभी में लाइट आती रहेगी।
इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते क्या हैं? सो द डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट एन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम इंजरी और इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद केमिकल, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर वर्कप्लेस हैजार्ड्स। So this statement is given by the OSHA. The need for protective equipment and the type of protective equipment is based on hazards present. Each situation must be evaluated independently. जैसे देखिए कुछ हमने अब यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, सो कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस यहाँ पर हमने दिखाए हैं। अगर आप देखना चाहें सो देखिए देयर इज ए प्लास्टिक ग्लव, लॉन्ग प्लास्टिक ग्लव, कैप, हेलमेट एंड जैकेट्स, लेंस, you can see stick, you can see the various screwdriver and other devices which can be used, rubber boots are there, wooden sheets can be used. So these are the few protective equipment which we can use for the protection of our persons who are working directly with the electricity, right. इसके बाद एक बात करते हैं स्विच गियर की। देखिए एक स्विच गियर यहाँ पर हमने यूज़ किए हुए हैं। स्विच गियर इज द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट स्विचेज, फ्यूजेज और सर्किट ब्रेकर्स यूज टू कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब देखिए पहले सर्किट ब्रेकर हमने यूज़ किया था। सर्किट ब्रेकर में आपको बताया कि रिले आपको अलग से लगानी पड़ेगी। सो सर्किट ब्रेकर की जगह हमने यहाँ पर क्या है, एक स्विच गियर यूज़ किया है। और स्विच गियर का फंक्शन इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिस्कनेक्ट स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर। क्या पर्पज़ है इसका? इट्स पर्पज़ इज टू कंट्रोल, प्रोटेक्ट एंड आइसोलेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। स्विच गियर इज यूज बोथ टू डी एनर्जाइज इक्विपमेंट, to allow work to be done and to clear faults downstream. Types की बात करते हैं। there are two types of switch gears, high voltage switch gear and low voltage switch gears. Generally electric board switch gear rated up to 1 kilowatt is called low voltage switch gear, and higher if they are used higher than 1 kilowatt they are known as high volt switch gear. The most common use of low voltage switch gear is in low voltage distribution board. अगर यूज़ की बात करें स्विच गियर का यूजेस क्या है? इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्ज एन इफेक्टिव स्विच गियर विल ट्रिगर, ऑटोमेटिकली इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ पावर एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर द डैमेज. स्विच गियर आर ऑल्सो यूज फॉर डी एनर्जाइजिंग इक्विपमेंट फॉर सेफ टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड फॉल्ट क्लियरिंग. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.